بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے لیے آج بہت ہی اہم اور سبق آموز واقعہ لے کر آیا ہوں۔ تو وہ یہ ہے معاشرہ کے متعلق ہے۔ تو معاشرہ میں یہ ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دنیا جہاں کے دکھ سکھ کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ اپنی ذوق میں اپنے شوق میں مگن رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا کوئی بیٹا ہے، وہ قابل ہے، وہ سکول سے ہوم ورک لے کر آیا ہے، ہوم ورک پہ اس کے استاد نے یہ لکھا ہے کہ گڈ لکھا ہے، بہت اچھا کام کیا آپ نے، یا 100% نمبر دیے ہیں، تو وہ آپ کو اپنے والد کو دکھاتا ہے کہ والد میری حوصلہ افزائی کرے گا۔ تو والد کہتا ہے ٹھیک ہے، اتنا سا کر کے اس کو ٹال دیا، حالانکہ بچہ اس سے بہت زیادہ کا تقاضا کر رہا تھا۔ تو اب وہی بندہ شاپنگ میں جاتا ہے، شاپنگ مال میں جاتا ہے شاپنگ کرنے کے لیے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک سیل مین اس سے کہتا ہے کہ بھائی میرا خط آیا ہے گھر سے، یا میرا فون آیا، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، آیا ہے بس۔ تو حالانکہ وہ جو سیل مین ہے وہ اگر بات کر رہا ہے تو وہ کچھ تقاضا کر رہا ہے، اپنا دکھ سکھ شیئر کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ بندہ آگے سے ٹھیک ہے کہہ کر اس کا دل توڑ دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ سرد موری ہے۔ تو اس سرد موری کو ہمیں ختم کرنا چاہیے معاشرے سے۔ لوگ دکھی ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، لوگوں کے دکھ سکھ شیئر کرنا چاہیے۔ تو یہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کو کوئی واقعہ سنانے لگتا ہے تو آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی میں نے سنا ہوا۔ بھائی آپ نے سنا ہوا ہے تو آپ دوبارہ پھر سن لیں۔ یا پھر کوئی بندہ لطیفہ سناتا ہے تو اس وقت ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے، اس کی حوصلہ شکنی ہوتے ہیں۔ یا پھر اگر کوئی دوست پرانا مل جائے، وہ آپ کو سکول کے واقعات سنانا چاہتا ہے، اگرچہ آپ کی عمر زیادہ ہے، تو وہ آپ کو اس بچپن کے ان واقعات کی طرف لے جانا چاہتا ہے، تو اس وقت بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پھر سرد موری کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ ان واقعات میں جو ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دیتے، تو بچپن کو یاد نہیں کرتے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ معاملہ ہے۔ تو آئیے اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اور ہمارے جو اکابرین ہیں دین اسلام کے بزرگ ہیں، ان کا کیا رویہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد ہیں۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی بندہ حدیث سناتا ہے، حالانکہ وہ حدیث ایسی ہو کہ جو کہ میں نے اس بندہ کے جنم لینے سے بھی پہلے سنی ہوئی ہوتی ہے، تو میں دوبارہ اس سے وہ حدیث سن لیتا ہوں، صرف اس لیے کہ اس کی حوصلہ شکنی نہ ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں جو واقعات ملتے ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ تو غزوہ خندق، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خندق سے پہلے خندق کی کھدائی کر رہے تھے، ایک صحابی تھے جن کا نام جعیل تھا، یعنی چھوٹا بچہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے عمر رکھ دیا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کام کرتے تھے اور ساتھ ساتھ یہ شعر بھی پڑھتے تھے، سماہ من بعد جعیل عمرا وکان للبائس یوما ظہرا۔ اللہ کے نبی نے اس کا نام جعیل سے بدل کر عمر رکھ دیا، اس غریب کے لیے آپ بڑے مددگار ثابت ہوئے۔ تو اب یہ شعر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ پڑھ رہے تھے، تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب یہ لفظ کہتے عمرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہتے عمرا، صحابہ کرام زہرا کہتے، تو آپ بھی ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر زہرا کہتے تھے۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین گرم جوشی سے شعر پڑھتے اور کام میں لگے رہتے کہ اللہ کے رسول ہماری آواز کے ساتھ اپنی آواز کو جو ہے ملا رہے ہیں۔ تو ان پر یہ خوشگوار احساس ہوا اور کہ رسول اللہ بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ رات کو سخت سردی ہو گئی، اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے خندق کی کھدائی کا کام جو ہے وہ ختم نہیں کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتھ تھے تو اسی خوشی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ایک اور شعر پڑھا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ تک پر بیعت کی ہے کہ جب تک زندگی باقی ہے اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت میں جہاد کرتے رہیں گے، اور ہم نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے۔ تو رسول اللہ، اب دیکھو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کے نوکر ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ سکتے تھے میں کہ جواب دوں، لیکن رسول اللہ کا آپ انداز گفتگو اور حوصلہ افزائی دیکھیے۔ رسول اللہ ان کا جواب دیتے جب صحابہ کرام یہ شعر پڑھتے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، تو رسول اللہ ان کا جواب دیتے اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ واقعتاً اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، تو مہاجرین و انصار کو بخش دے۔
इन सारे दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाते रहे, उनसे हम आहंगी का इजहार करते रहे। खंदक की खुदाई के दौरान एक दिन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन धूल से अटे हुए ये शेर पढ़ रहे थे, वल्लाहि लौला अल्लाहु मा महतदैना वला तसद्दक़ना वला सल्लैना, वल्लाह अगर अल्लाह ना होता तो हम हिदायत ना पाते, तो ना हम सदका करते और ना नमाज़ें पढ़ते। फ़अंज़िल सकीनता अलैना वसब्बितिल अक़दाम इन्नल अक़ीना, ऐ अल्लाह तूने हम पर सकीना नाजिल फरमाई, अगर दुश्मन से हमारा सामना हो तो हमें साबित कदम रख। इन्नल उला कद बगू अलैना इज़ा अरादू फितनतन अबीना, उन लोगों ने हम पर जुल्म किए, उन लोगों ने हम पर जुल्म किए जब उन्होंने कोई फितना बर्पा किया, तो फितना बर्पा करना चाहा तो हमने उसका इनकार किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी उनके साथ ये शेर पढ़ते, अल्फाज दोहराते। रसूलुल्लाह से जब कोई मज़ाह के अंदाज में बात करता तो आप भी हंसते और तबस्सुम फरमाते। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन आपकी महफिल में हाज़िर हुए। उन दिनों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अज़वाज मुतहरात हैं, मोमिनीन की माँ हैं, उनसे कुछ नाराज़गी चल रही थी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिल ही दिल में सोचा कि आज मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हंसाना है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहने लगे, या रसूलल्लाह कभी हम कुरैश के लोगों की खस्ता हाली भी मुलाजा कीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या हुआ? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, एक वो ज़माना था जब हम मक्का में रहते थे तो औरतों पर हमारी सरदारी हुआ करती थी, औरतों पर हमारी हुक्मरानी की हुआ करती थी। जब कोई औरत हमसे कोई मुतालबा करती थी तो हम उसको मारा करते थे, उसका मुतालबा नहीं पूरा करते थे। फिर हम मदीना में आ गए, यहाँ पर हमारा एक ऐसी कौम से वास्ता और पाला पड़ा कि जहाँ पर औरतों की जो है वो सरदारी है, तो यहाँ पर जो है हमारी औरतें भी उनकी देखा देखी जो है वो हम पर गालिब आने लगी हैं। तो अब हमारी औरतें जो हैं हमारी वो उस तरह की हुक्मरानी को तस्लीम नहीं करती। तो इनकी इस बात पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। हदीस में हम पढ़ते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना मुस्कुराया करते थे कि आपकी जो आगे वाली दाढ़ें हैं वो नज़र आ जाया करती थी। एक दिन हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैं आपको उन जहलियत के दौर वाली 11 औरतों का किस्सा न सुनाऊं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनाओ। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो 11 औरतों वाला किस्सा सुनाया कि पहली खातून ने कहा कि मेरा जो शोहर है वो लाग़िर ऊँट का गोश्त है, जो दुश्वार गुजार पहाड़ की चोटी पर पड़ा हो, ना चढ़ना आसान है ना खाना आसान है, यानी मेरे खामिद का जो है ना वो मुझे कोई फ़ायदा नहीं, बद अखलाक है, मुझे कोई सहूलत उसने नहीं दी हुई। तो दूसरी बोली, मैं अपने शौहर का हाल बयान नहीं कर सकती, इसलिए कि अगर मैं उसका हाल बयान करूं तो उसमें इतनी बुराइयां हैं कि वो मुझे छोड़ देगा, और अगर उसको पता चलेगा तो छोड़ देगा, और इसलिए बेहतर है कि मैं खामोश ही रहूं। तो तीसरी औरत ने कहा कि मेरा जो शौहर है वो लंबा तड़ंगा है, बहुत कद वाला है, लेकिन अकल उसकी जो है वो टखनों में है, बोलती हूँ तो तलाक देने को दौड़ता है, खामोश रहती हूँ तब भी वो मारता रहता है, तो ना मुझे छोड़ता है और ना मेरे साथ शौहर वाला सलूक करता है, वो मुझे तलवार की धार पर चलाता है। चौथी कहने लगी, मेरा शौहर तो हमा की रात, मेरा शौहर तो हमामा है, वो रात की मानंद साफ शफाफ और मोतदिल है, ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, ना खौफ है ना उकतराहट है। पांचवी ने कहा, मेरा शौहर घर आए तो तेंदुए की तरह लंबी तान कर सो जाता है, ऐब जोई नहीं करता, गलतियों से चश्म पोशी करता है, घर से बाहर शेर की तरह बहादुर, खुले दिल का, ऐसा कि अखराजात के मुतल्लिक कभी नहीं पूछा, जो मैं खर्च करती हूँ कभी मुझसे हिसाब किताब नहीं लिया। छठी खातून बोली, मेरा शौहर बैठ जाए तो सब कुछ हड़प कर जाता है, पीने लगे तो एक बूंद नहीं छोड़ता, बिस्तर पर आए तो सारा लिहाफ खुद लपेट कर मुंह पर लपेट कर वो सो जाता है, हाथ बढ़ाकर मेरा हाल तक दरियाफ्त नहीं करता। तो उसने कहा कि ये मेरे खामिद के अंदर ये उयूब हैं, यानी मेरा वो ख्याल नहीं करता, खाना भी खुद सारा खा जाता है, पी भी सारा कुछ जाता है, हत्ता के बिस्तर तक मेरे साथ वो नहीं करता। सातवीं बोली, मेरा शौहर बुद्धू और अहमक है,
दुनिया की हर बीमारी ऐब उसमें मौजूद है। तुम इससे बात करोगी तो वो तुम्हें गाली निकालेगा, कोई मजाक अगर कर दे तो ईंट सिर पर मारेगा या कोई हड्डी पसली तोड़ देगा। 8वीं ने कहा, मेरे शोहर को छुओ तो खरगोश की तरह नरम है, सूंघो तो खुशबूदार है। मैं उस पर उसकी नरम मिजाजी की वजह से गालिब हूँ और वो लोगों पर कुव्वत के बल पर गालिब है। अब नवी खतून कहने लगी, मेरे शोहर की तलवार का जो परतला है वो लंबा है, यानी वो दराज कद है, और उसके सेहन में राख के ढेर लगे रहते हैं, यानी उसके पास मेहमानों की आमद रफ्त लगी रहती है, मेहमान बहुत ज़्यादा होते हैं। उनका खाना पकने से चूँकि लकड़ियाँ जलती हैं तो राख ज़्यादा होती है। तो उसके घर का दोस्तों के घर जो है, उस दोस्तों की महफिल उसके घर में लगी रहती है, लेकिन वो घर वालों को ख्याल रखता है। अगर दोस्तों में भी बैठा हो तो घर आ जाता है, यानी ये नहीं कि घर वालों से जो है ना वो दोस्तों की महफिल में लगा रहा, घर वालों को ख्याल ना किया, तो ऐसा नहीं करता। तो जिस रात घर में मेहमान आते हैं तो उस रात वो पेट भर कर नहीं खाता, भूखा रह जाता है अपने शर्मीलेपन की वजह से। और अगर कहीं मेहमान जाए तो उस वक़्त भी वो भूखा रह जाता है, पेट भर कर नहीं खा सकता अपने शर्मीलेपन की वजह से। तो 10वीं औरत ने कहा कि मेरे शौहर का नाम मालिक है, तुम क्या जानो कि मालिक कौन है। इसकी बेशुमार खूबियाँ हैं जिनका अहाता करना मुमकिन नहीं है। मालिक सबसे अच्छा है, उसके पास बहुत ऊँट हैं जो हमेशा अपने बाड़ों में बंधे रहते हैं। बाहर चराने का उन्हें कम ही मौका मिलता है, बकसरत मेहमान आने की वजह से ऊँट ज़बा भी होते रहते हैं। ऊँट जब आग जलाने की आवाज़ सुनते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है अब उनकी खैर नहीं है। 11वीं औरत उम्मे ज़ुरा बोली, मेरा शौहर अबू ज़ुरा, तुम क्या जानो कि अबू ज़ुरा कौन है। इसने मेरे कान जेवरात से लाद दिए, मेरे बाजू चर्बी से भर दिए, यानी अच्छी ग़िज़ा दी जिससे मैं मोटी हो गई। तो उसने मेरी इतनी तारीफ़ की कि मैं अपने आप को भी अच्छी लगने लगी। उसने जिस घराने से मुझे ले आया वो वहाँ पर चंद बकरियाँ हुआ करती थी और उसने अपने घर में ले आकर मुझे खुशहाल कर दिया। तो जब मैं बात करती हूँ तो मुझे लान तान नहीं करता, मुझे तकलीफ़ नहीं देता। जब मैं सोती हूँ तो मुझे उठाता नहीं है, पीने लगती हूँ तो इतना पीती हूँ कि फिर पीने की ख्वाहिश नहीं रहती। तो उसने ये कहा। अबू ज़ुरा की वालदा के बारे में भी उसने तारीफ़ की कि वो भी खुशहाल औरत है, खूबसूरत है, अच्छी है और अच्छी सेहत की मालिक है। तो अबू ज़ुरा का बेटा के बारे में उसने कहा कि अबू ज़ुरा का बेटा क्या है और क्या है, तुम क्या जानो। तलवार जो है वो भी खूब चलाता है और अच्छे जिस्म का मालिक है। तो बकरी के बच्चे की दस्ती से सैर हो जाता है, यानी कम खुराक खाता है। तो बिन्त ज़ुरा, तुम क्या जानो कि बिन्त ज़ुरा कौन और कैसी है, यानी अबू ज़ुरा की बेटी माँ बाप की फर्माबरदार है, उसका मोटा बदन है, कपड़ों को भर देता है, वो सौतन का जलापा है, यानी जो सौतन है वो उसकी खूबसूरती और उसके रहन सहन की वजह से उससे जलती है। अबू ज़ुरा की खादमा, तुम क्या जानो कि अबू ज़ुरा की खादमा कैसी है। वो हमारी बात बाहर जाकर नहीं बताती, वरना ना हमारे गला से, यानी हमारे गला से बेपरवाही नहीं करती और ना ही हमारी बातें बाहर जाकर बताती है। तो अब आगे वो बयान करने लगी कि एक दिन अबू ज़ुरा घर से निकला, मशकों से मक्खन निकल रहा था, बाहर का खुशगवार मौसम था। उसकी मुलाकात एक ऐसी औरत से हुई जिसके तंदवे चुस्त व चालाक थे और मजबूत थे। 2 बच्चे थे, वो दोनों उसके पहलुओं पर खेल रहे थे। अबू ज़ुरा ने मुझे तलाक दे दी और उस औरत से शादी कर ली। अबू ज़ुरा के बाद मैंने जिस औरत से निकाह किया वो भी बहुत अच्छा है, तलवार का तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार होता है। उसने मेरे पास नेमतों के अंबार लगा दिए। उसने मुझे हर वो खुशबू दी जो वो खुद लगाता है, हर वो चीज़ मुझे पहनने को दी जिस तरह की वो खुद पहनता है, हर चीज़ वो मुझे खाने को दी जिसको वो खुद खाता है। तो लेकिन अगली बात जो उम्मे ज़ुरा ने की, उसने कहा कि इसके घर की सारी नेमतें जो कुछ भी इसने मुझे दिया है, अबू ज़ुरा के एक घर के एक छोटे बर्तन के बराबर भी नहीं है। तो ये पहली चूँकि मोहब्बत थी उम्मे ज़ुरा की, तो उसने उस वक्त तारीफ़ की। तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा ने कहा कि या रसूलुल्लाह, यहाँ पर यह किस्सा तमाम हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद मसरूफियात के, बावजूद इतने मामलात के, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ये किस्सा गौर से सुना। जब हज़रत आयशा ने किस्सा मुकम्मल किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तो तुम्हारे लिए वैसा हूँ जैसे अबू ज़ुरा
ज़ुरा के लिए था। तो जनाब इस अमर पर हमारा इत्तेफाक होना चाहिए कि हम लोगों को जितना अहमियत देंगे, जितना उनको उल्फत और लताफत से मिलेंगे, तो इसमें हमारी अपनी अहमियत बढ़ेगी। तो ये वाक़या जो है ये लिखा हुआ है सही बुखारी, हदीस नंबर है 5199 और सही मुस्लिम में 2448 ये हदीस का नंबर है। तो ये जो वाक़या आपके सामने नकल किया है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम भी रसूलुल्लाह की सीरत की रोशनी में इसी तरह अगर कोई हमसे अपना दुख सुख शेयर करना चाहता है, हमसे गुफ्तगू करना चाहता है, तो हमें भी चाहिए कि हम उसकी गुफ्तगू में शरीक हों। और